Hi there, warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Dekha. Well, today we are joining you on a day when many are saying that there has been a sazish, a conspiracy, not just against Vinesh Phogat, but the entire nation. Was the Beti of Bharat being shortchanged from her golden dreams at the Olympics? Well, let's tell you what has happened through the day. Well, the Indian ace wrestler Vinesh Phogat, hopeful of winning a medal after entering the finals, has received a major setback after she was disqualified from the Paris Olympics. In fact, Vinesh Phogat was about to compete for gold in the women's wrestling finals against America's Sarah Hildenberg. However, this morning, unfortunate news came in that she was found to be merely 100 grams over the 50 kg criteria and will return from Paris without any medal. So she won and yet she lost. Vinesh has scripted history. She became the first Indian women wrestler to reach the gold medal bout in the event, but today she's been left with absolutely nothing. She may have defeated world champions, but she will come last in the Olympic tally. She was defeated in this bout by the 100-gram weight. In fact, according to reports, Vinesh Phogat has approximately 2 kgs overweight on the eve of the final bout. She tried to go all out and she tried to bring her weight down, and she included skipping several meals. Then she continued to skip as well. As you can see, these are the visuals of Phogat all through the night, is what we are picking up from our sources who are there in Paris with her, that all through the night, Vinesh Phogat continued to skip. She didn't eat anything as well. She didn't even sleep the entire night, hoping to fall under the weight category. Unfortunately, all the efforts really came to naught. The WFI has now, in fact, written a letter to the World Wrestling top body to try and review the decision, as Vinesh's disqualification seems disproportionate, considering the kind of brilliant performance that she gave just the night before. And this is the nature of the weight discrepancy, unfortunately. Listen into some of the reactions coming in. षड्यंत्र भी हो सकता है कि इसमें कोई षड्यंत्र हो, जानबूझ के ऐसा किया गया हो? ना, वो तो पता नहीं, मेरे जो बात हो बताऊं। फेडरेशन को सर आप लिखने वाले हैं कुछ, क्योंकि फेडरेशन अभी कुछ नहीं, जब बाद में जो बात होगी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। हमने UWW को मेल किया है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेल किया है। सर, उस प्रोटेस्ट मेल में क्या लिखा गया है? वो यही लिखा गया है कि यह हमारी एक बहुत अच्छी रेसलर हैं और इनके पीछे इन्होंने जो 3 बाउट लड़ा है, उस बाउट को देखते हुए और ये हमें 100 ग्राम की छूट दी जाए। अभी नियम उनका ये है कि जो हारा है उसको दे देंगे, वो नियम जो है ड्रॉज में उनका नाम दे देंगे। अभी एक चांस है, ये क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। अभी चांस है, हम उसी के लिए हम लोग मेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। पीटी उषा मैडम भी लगी हुई हैं और अभी तो हम उम्मीद पे हैं। In fact, amid a major setback for Vinesh Phogat, the entire nation, however, still stands tall behind the Indian athlete. Prime Minister Modi himself, he has consoled the ace wrestler. He's put out the social media post as well. He's urged her to return stronger and assured her that the entire nation is still rooting for her. He's put out this post as well in her favor. Even other politicians are leaving no stone unturned to keep the Indian athletes' morale high, despite this hour of grim despair that she faces. देखिए, हम तो शॉक्ड हैं और हम बहुत परेशान भी हैं जब से ये समाचार आया, क्योंकि हमें तो ये आशा जगी थी कि इस बार इस हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट से हमें गोल्ड की उम्मीद थी। देश शॉक्ड है, सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी अभी ट्वीट आया है और हर स्तर पे इसको हमें हर फोरम पे
उठाना भी है इस विषय को। In fact, let me go across to our panelists. Today joining us on the show is another Beti of Bharat, Pooja Gehlot. She's a wrestler and of course you'd remember her from the 2022 Commonwealth bronze medal winner for India as well. Thank you so much Pooja Gehlot हमारे साथ यहाँ पर Times Now पे आने के लिए। आज पूरा देश एक ही चीज़ बोल रहा है, that it is unfortunate कि इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे फॉर्म में रहने के बावजूद बस 100 ग्राम के लिए आज विनेश फोगाट के ओलंपिक ड्रीम्स ऐसे क्रश हो जाए। अभी भी क्या उम्मीद है दैट समथिंग विल बी वर्कड आउट, कि ये जो अपील कर रहे हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा एट द एंड ऑफ इट? देखिए मैम, जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 100 ग्राम वेट के कारण मेडल से दूर होना, जबकि उम्मीद है पूरे देश को कि गोल्ड लेके आ सकती थी विनेश थी। तो अभी देखो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी पीटी उषा मैम से बात की है कुछ होगा तो, लेकिन वेट तो मैम जैसे सेकंड डे भी दिखाना होता है जी, मतलब पहले दिन भी पूरा दिखाना होता है और जैसे फाइनल में पहुंचते हैं तो दूसरे दिन भी दिखाना होता है। लेकिन कुछ टाइम दे दिया जाता है, जैसे 100 ग्राम वेट नहीं आ रहा तो कुछ टाइम दिया जाता है कि हाँ थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं, लेकिन अभी देखो क्या होता है, बात तो चल रही है। पूजा गहलोत जी, आप जरा ये पूरा प्रोसेस के बारे में जो बताए और थोड़ा सा विस्तार में बता दीजिए। वेट दोनों ही दिन में लिया जाता है बाउट के पहले, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि कल तक तो विनेश का वेट ठीक था मगर आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, 100 ग्राम बढ़ा हुआ था। कैसा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है? मैम जैसे पहले दिन वजन होता है सुबह हमारा 8 से 8:30, तो उस दिन पूरा वेट चेक करते हैं और फिर हम सेमीफाइनल तक बाउट होती है। जैसे जो फाइनल में पहुंचते हैं या जिनकी भी बाउट होती है अगले दिन, उनका दोबारा से वेट लिया जाता है अगले दिन पूरा। तो वहां पे छूट नहीं देते, मतलब 10 ग्राम की भी छूट नहीं देते हैं। अच्छा। तो पता नहीं आगे का प्रोसेस क्या है, मतलब हमें बस इतना ही पता है कि भाई दोनों दिन वेट पूरा ही लिया जाता है। आपके जैसे रेसलर्स, विनेश के जैसे रेसलर्स क्या कोशिशें कर सकते हैं अपना वेट घटाने के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा नहीं रहा होगा, उनके पास पूरी बस रात भर का टाइम होगा है। ये हमें सुन रहे हैं कि वो स्किपिंग कर रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। क्या क्या प्रोसेसेस इन प्लेस होते हैं वेट घटाने के लिए अगर आपके पास सिर्फ एक रात का समय है? मैम इस बारे में विनेश दीदी को हमसे तो कुछ ज्यादा ही मतलब पता है, लेकिन वही है ना कि पूरा उन्होंने पहले भी वेट कम किया, 50 लेके आई, फिर पूरा दिन बाउट भी लड़ा है उन्होंने और फिर से वेट कम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी 50 में खेली हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो बड़ा मुश्किल होता है मैम। और उनके हिसाब से 53 kg वेट मतलब बेस्ट था उनका, लेकिन उनको 50 में लड़ना पड़ा, तो बहुत मुश्किल था उनके लिए वेट लेके आना। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि वो उनका पहले वो 53 में खेलती थी, इस बार 50 में वो क्यों खेली? मैम 53 का पहले क्वालिफाई हो चुका था और अच्छा कोई चांस नहीं था कि किस वेट में लड़े, तो इसलिए उन्होंने 50 kg में ट्राई किया, क्योंकि अभी हमें पक्का था ही नहीं कि ट्रायल होगी नहीं होगी दोबारा से, और लास्ट में ट्रायल हुई भी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने 50 में दिया। तो यही था कि रिस्क तो नहीं ले सकते। तो आपने उनसे बात की क्या? उसके बाद आपकी कोई भी बात हुई है विनेश फोगाट या कोई भी जो पेरिस में होगा अभी? नहीं, बात तो नहीं हुई है, बस ऐसे न्यूज पे देखा कि उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई है कि हॉस्पिटल में एडमिट किया है उनको। हाँ जी, हमने भी वही सुना है कि अभी तो वो स्टेबल है। उन्होंने एक थम्स अप करके उन्होंने एक फोटोग्राफ जरूर भेजी है। अभी भी होप बचा है। पूजा गहलोत जी, आपको अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, शायद फिर से विनेश को एक मौका मिले? मैम एक उम्मीद तो रख ही सकते हैं, क्योंकि अभी बाउट आने में टाइम है गोल्ड की, तो अगर कुछ हो सकता है तो देखो हमारी फेडरेशन द्वारा ही कुछ हो सकता है। फिर वो तो फेडरेशन का सपोर्ट ऐसे टाइम पे कितना जरूरी है और आपको लग रहा है कि उनको मिल रहा है वहां पर? मैम फेडरेशन का सपोर्ट तो खैर उसमें जरूरी है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सिल्वर तो पक्का हो ही गया था और चांस थे कि वो गोल्ड लेके आए। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही थी ना विनेश दीदी, तो गोल्ड के चांस थे।
तो सपोर्ट तो होना चाहिए भी फेडरेशन का। सपोर्ट कैसा रहा है फेडरेशन अब की? क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपोजिशन से बोल रहे हैं कि कुछ लोग बहुत खुश है कि विनेश फोगाट ऐसे डिस्क्वालीफाई हो गई। आप ये बताइए फेडरेशन का सपोर्ट कितना मिला है विनेश फोगाट? उनका प्रेपरेशन कैसा रहा था पेरिस ओलंपिक्स के लिए? मैं वो तो वही जान सकती हैं, लेकिन नहीं खुश तो कौन होगा। मैं मेडल से चूक गया और इतना ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा हुआ है। मतलब एक ये था मेडल पक्का हुआ, उसके बावजूद भी। मतलब उनके कोचेस कैसे थे उसके बारे में अगर कुछ बताए, क्योंकि सुना है कि उनके पास बहुत ही बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, मगर सपोर्ट स्टाफ का क्या रोल होता है इस वेट को घटाने के लिए, वेट को मॉनिटर करने के लिए, ये बताइए। मैम रोल तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक जैसे बहुत नीचे वेट में लड़ रही हैं तो बच्चे की तो हिम्मत टूट ही जाती है। मतलब एक टाइम पे ऐसा भी आ जाता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा या जाने दो नहीं हो पाएगा, तो वहां पे बस उन्हीं का सपोर्ट जरूरी होता है। वो जबरदस्ती भगवाते हैं हम लोगों को उस टाइम पे हाथ पकड़ पकड़ के, क्योंकि हिम्मत तो बचती नहीं है बिल्कुल शरीर में, पानी भी छोड़ना पड़ता है उस टाइम। हाँ तो ये मैं आपको सपोर्ट स्टाफ के बारे में इसलिए पूछ रही थी कि आप अगर उनका अभी क्रू देखें, उनका सपोर्ट स्टाफ देखें, वोलार आकोस, आई बिलीव दैट्स हाउ इट्स बीइंग प्रोनाउंस, वो कोच है। वेन पैट्रिक लोम्बार्ड वो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एक्सपर्ट है। उनके साथ अश्विनी जीवन पाटिल है जो फिजियोथेरेपिस्ट है। मयंक सिंह गारिया है जो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एक्सपर्ट है। शुभम अरविंद है, ये लोग स्पारिंग पार्टनर्स भी है। उनके लिए काफ़ी सपोर्ट दिया गया था कि वो ऐसे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए जो उन्होंने दिया। मगर अब ये बोल रहे हैं, जो अपोजिशन में भी लोग बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि सपोर्ट स्टाफ क्या पेरिस में छुट्टी मनाने गया था? नहीं नहीं मैम, सपोर्ट उन्होंने हेल्प की है तभी तो वो पहले दिन भी वेट दिखाया है उन्होंने, और वेट दिखा के इतनी अच्छी बाउट भी लड़ी है। वर्ल्ड नंबर 1 ओलंपिक चैंपियन को भी हराया है जी। तो सपोर्ट तो मिला ही है। एक मतलब 100 ग्राम वेट अटक जाना मतलब ना घटना, तो ये बस यही बोल सकते हैं कि भाग्य की बात होती है बस।